अपने फैमिली डॉक्टर KL शर्मा ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੋਮਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਬਦਲੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਉਸਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੇਨ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਸਟੋਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ 10 mm ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 12 mm ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਟੋਨ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਔਰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਨ ਹੈ ਵੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਸੋਜ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ IVF ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗੀਨ ਐਕਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਟੋਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ IVF ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਮੇਰੇ परिवार ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। नमो नारायण जी। एक लाइन में आप खड़े रखें। यहाँ जो अनुभव सुनाने वाले हैं उनको एक लाइन में शीघ्रता से भेजते रहें और शीघ्रता से आप अपने जो अनुभव है उनको सीधा अपने नाम से शुरू करें। नमो नारायण जी। नमो नारायण जी। मेरा अनुभव है कि मेरा नाम ओंकार सिंह हैगा। मैं छोटी जी दुकान करता हैगा ते मेरा दिमाग परेशान हो जाता सी, मैनू समझ नहीं सी लगती कि मैं की करना। मैं दुकान के ताले भी खुले छड़ के घर में दौड़ जाता सी। इन्ना मेरा माइंड जिहड़ा ना खराब हो चुका सीगा। बड़ी डॉक्टर ने दवाइयां कही, हालांकि मैं खुद हकीम हैगा। दवाइयां खा खा के मैनू कोई फर्क नहीं पिया। जो दा मैं बीज मंत्र लिया अंमृतसर तो, मैंने बीज मंत्र मिलिया। बीज मंत्र लैण तो बाद कि मेरा एक बीमारी दूर हो गई, लेकिन हाले शरीर दे विच कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी बहुती जानी कि जलन वगैरह जां दर्द वगैरह हुंदी, बाकी सब ठीक हैगा जी। नमो नारायण। नमो नारायण। गुरुदेव एवं गुरु माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम नैना कटिहार बिहार से आए हैं। मेरा पहला अनुभव मेरे छोटे बेटे प्रणव को लेकर है। वो 10 साल का है। एक दिन रात में उसकी उल्टी में थोड़ा सा ब्लड आया। उसी रात हमको बहुत घबराहट हुई। हम उसी दिन से अपने बेटे के लिए बीज मंत्र का पाठ किए और वो अब बिल्कुल ठीक है।
मेरा दूसरा अनुभव मेरे को लेकर है। मेरे किडनी के दोनों साइड में, एक साइड में 5 mm और दूसरे साइड में 6 mm का स्टोन हो गया था। कुछ ही दिन 15-20 दिन ही मात्र दवा खाके हमने दवा खाना छोड़ दिया और बीज मंत्र का पाठ करती रही। और 2 माह के अंदर ही जब हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाया तो कहीं कोई स्टोन नहीं था। तीसरा अनुभव मेरे पति को लेकर है, जिनके लिए मैं डेली बीज मंत्र किया करती हूँ। उनको स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम थी और जिस दिन से हमने उनके लिए बीज मंत्र का पाठ किया वो धीरे धीरे बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गया है। चौथा अनुभव मेरी सबसे बड़ी बेटी सुनिधि को लेकर है। वो खुद भी बीज मंत्र का पाठ करती है और हम भी कुछ समय के लिए उसके लिए बीज मंत्र का पाठ करते थे। 8-9 में वो 50 से 60% मार्क्स लाई थी, लेकिन बीज मंत्र के प्रभाव से उसको बोर्ड में 86% मार्क्स आया। मेरा ये अनुभव मेरी छोटी बेटी नंदिनी को लेकर है, जिसके आंख के ऊपर एक छोटी सी गांठ हो गई थी। हम भी उसके नाम का बीज मंत्र का पाठ करते थे और वो खुद भी एक टाइम बीज मंत्र का पाठ करती थी। पाठ के प्रभाव से उसका पूरी तरह से गांठ गायब हो गया। मेरा यह अनुभव मेरे पति को लेकर है। उनको हमेशा पहले 2006 और 2007 में प्रेशर रहा करता था। उसी दिन से हम उनके लिए बीज मंत्र का पाठ करने लगे और उनका प्रेशर ठीक हो गया। और हमारे पति के ऊपर 9-10 लाख रुपए का कर्ज था। कुछ 2008 और 9 में दीपावली की रात्रि को हमने दोनों रात पूर्ण रात्रि जागरण और बीज मंत्र का पाठ किया और वो कर्ज भी उतर गया। नमो नारायण। नमो नारायण। गुरु माँ और गुरु जी को प्रणाम। आप आ जाओ, ये साउंड वाले करेंगे अपने आप से। नमो नारायण। गुरु माँ और गुरु देव जी को मेरा नमन। मेरा अनुभव ये है, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਕੁਛ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਜਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚੜਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਡਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਦਰੂ
ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਡਨੀ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਜਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। मैं गुरु जी का बहुत धन्यवाद करता हाँ। और दूसरा मैं अपने भरा और अपने भरजाई हुणां नूं अपना गुरु मंत्र लैके दिते, जिहदे नाल ओह इटली दे विच भी बैठे उन्हां दा जप कर रहे हैं। मैं उन्हां दा बहुत शुक्रिया अदा करदा हां। नमो नारायण। बहन जी बात ये पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है आपको जी। नमो नारायण। जय गुरुदेव, जय गुरु मां जी। मेरा नाम सुमन है। मैं गांव फिरोजपुर, जिला हुशियारपुर, तहसील मुकेरियां तो आई हाँ। मेरे 2010 में मेरे बेटा हुआ। बाद में मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। मेरे पिताजी ने मुझे देवी तला हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, MRI करवाई और मेरे सिर में रसोली और कैंसर था। फिर मेरी बहन और मेरे भैया जी मुझे दिल्ली समागम में ले गए। वहाँ गुरु जी का समागम था। मुझे गुरु जी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया और मुझे लुधियाना ले गए। वहाँ के डॉक्टर बहुत हैरान थे कि इसकी जान कैसे बची। मेरे सिर का ऑपरेशन हो गया और मेरी जान बच गई। जय गुरुदेव, जय गुरु मां। यहाँ संगत में अगर कोई डॉक्टर हो, BMS हो, MBBS हो, MD हो, किसी भी प्रारूप को जानने वाले अगर कोई डॉक्टर हो तो वो कृपया यहाँ स्टेज के पास आकर संपर्क कर लेंगे। अभी कुछ डॉक्टर मुझे पीछे मिले थे, उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो अगर कोई भी डॉक्टर यहाँ आए हैं तो कृपया यहाँ आकर संपर्क कर लें। ओम नमो नारायण। गुरुजी ओम नमो नारायण। गुरुजी गुरु मां दे पैरां च कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम जग परमप्रीत सिंह है। मैं गुरदासपुर तो आया हाँ। मेरे सप्लियां आ गई सन काफ़ी। मैनू M3 की मैथ की सप्ली तो बहुत डर लगता सी, जो कि मेरी आ गई। गुरु जी के पाठ मैं करता रहा, निरंतर पाठ करने तो बाद मेरी वो सप्ली हल हो गई। उस तो बाद मैं कॉलेज के थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर ज्वाइन करने के नाल मेरी कॉलेज के विच जान पछाण वधी, जिस दे कारण मैनू हुण पिछे जी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ओम नमो नारायण जी। ओम नमो नारायण। मेरा नाम निशा, मैं फाजिलका से हूँ। मेरा अनुभव मेरे बेटे को लेकर है। 2010 में मैंने बीज मंत्र का पाठ किया। 2010 में मैंने बीज मंत्र लिए और 2011 में मेरे पास बेटा हुआ। और मेरा दूसरा अनुभव, मेरा ETT सेकेंड ईयर में मैंने 9th मंथ था जब मेरा पेपर हो रहे थे। मैं सही सलामत घर पे आई और मेरे मार्क्स 73% आए। और मेरा तीसरा अनुभव मेरे पति को लेकर है। थोड़े 6 महीने पहले उनको टीवी की शिकायत हुई थी और 3 महीनों में वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। उनकी रिपोर्ट आई बिल्कुल नेगेटिव थी। हे गुरुदेव, मेरे बच्चों पर और मेरे पति पे अपनी कृपा बरसाए रखना। प्रार्थना नहीं रखनी, केवल अपने अनुभव सुनाएं, प्रार्थना नहीं रखनी। नमो नारायण। और कोई अगर अपनी प्रार्थना रखना चाहता है तो लिख दें। इसके अतिरिक्त आप अनुभव किसी भी भाषा में सुना सकते हैं। इंग्लिश में कौन कौन सुना सकता है अपने अनुभव? यहाँ जो बैठे हैं अगर उनमें से कोई हो तो इंग्लिश में भी अगर आप सुनाना चाहें इंग्लिश में सुना सकते हैं, पंजाबी में सुना सकते हैं, हिंदी में सुना सकते हैं, जिस भी भाषा में आप चाहें। नमो नारायण। परम पूज्य सदगुरु देव जी के चरणों में, परम पूज्य गुरु मां जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम नरोत्तम लाल है। मैं जम्मू से आया हूं। मुझे 4 साल पहले शुगर हो गई थी, तो उस शुगर से काफी परेशान था। कोई बोलता था कभी ये जाएगी नहीं, ये बॉडी को डैमेज करती है, पूरे पार्ट्स को खराब कर देती है। मेरे घुटनों में भी दर्द हुआ, दाहिनी टांग में भी।
तो ये एक बड़ी परेशानी का कारण मेरे लिए बना हुआ था। बहुत इलाज करवाए, मैं सेना में हूँ और सेना एक्समैन हूँ, और मैंने आर्मी से बड़े बड़े डॉक्टरों से दवाइयाँ और सब और सिविल से भी करवाए और कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं 2011 जो नवरात्रों में जम्मू में प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद दिल्ली में मैंने बीज मंत्र लिए, तो उसका निरंतर जाप करता रहा। जो पूरा निरंतर नहीं भी कर सका, तो अभी मैंने टेस्ट करवाया 31 दिसंबर को, जो कि लाल पर्थ लैब की रिपोर्ट मेरे पास है। उसमें मेरा शुगर फास्टिंग 263 था, जो कि 100 से 40 के बीच में होना चाहिए। तो फिर मैं लगातार और ज्यादा जप करने लगा और करते अभी मैंने मार्च की 13 तारीख को करवाया है टेस्ट, तो मेरा आया है 86, जो कि बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब गुरुदेव की कृपा है, गुरु महाराज की सब दया है और उनके आशीर्वाद से और उनकी कृपा से ही सब हुआ है। और दोनों टेस्ट मेरे पास हैं। और दूसरा अनुभव मेरा है कि मैं जैसे बताया कि मैं सेना में 30 साल रह के घर में आया, तो घर में किसी झगड़े में मेरे भाई के साथ ऐसा था कि हम तो सेना में बड़े साफ सुथरे और सोचे कि भाई अपने रिश्तेदार सब अच्छे लोग हैं, तो किसी रिलेटिव ने किसी झगड़े में बोला कि मैं तुम्हें इससे सेव करवाऊंगा, ये करवाऊंगा। मैं विश्वास कर लिया और उसने ऐसा चक्कर बनाया कि मेरे पर कोई ऐसी FIR लगवा दी कि भाई ये बंदा जेल में बैठे तो इससे मैंने पैसे ले लेके खाता रहूं, लेकिन वो हो नहीं सका। वो सब गुरुदेव की कृपा हुई। उसके बाद फिर अभी मेरा 4 महीने वो ट्रायल चला जज साहब के पास, और मैं आपको सच बताता हूं कि जो गणेश कवच है, गणेश कवच में ये लिखा हुआ है कि जो 21 दिन 21 बार रोजाना उस कवच का पाठ करेगा वो जेल से भी छूटेगा। तो मैं वो 21 दिन लगातार 21 बार पाठ किया, और वो पूरे उसके प्रभाव से उसमें यह भी लिखा है कि जो गणेश कवच का पाठ करके राजा के पास जाएगा तो राजा उसका सम्मान करेगा। तो मैं वो 3 बार पाठ करके जज साहब के पास जाता था। तो आप विश्वास करना कि मैं खुद फील किया कि जब मैं जज साहब के अंदर घुसता था तो जज साहब इतनी श्रद्धा से मेरे को देखते थे कि मुझे वो अपराधी देखते ही नहीं थे। वो ऐसे उनकी नजर मेरे पे पड़ती थी जैसे वो बड़े सम्मान से देख रहे हैं। और मैं वहां से बिल्कुल मैं बच गया और बिल्कुल सेफ हो गया। और वो जो मेरे पर षड्यंत्र था सब गुरु महाराज की कृपा है। गुरुदेव का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। ये संकेत मिल रहे हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के आने के, लेकिन आप अपने अनुभवों का क्रम चलाते रहें। बाकी जो कैमरा के सेवादार वहां जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे। एक कैमरा कम से कम यहां अनुभव चलता रहेगा और फिर 1-2 मिनट के बाद फिर भजन का प्रारंभ किया जाएगा। जो अनुभव सुनाने के लिए आप आते रहें आगे। हेलो गुरु नमो नमाय राम। मेरा नाम प्रवीण है, मैं जलंधर में रहती हूँ। मेरी बेटी है, मेरी बेटी ना बोलती थी ना सुनती थी, ऐसी थी कि उसके कंडीशन ऐसी थी कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। पर भगवान नारायण की कृपा से आज बच्ची इतने अच्छे शब्दों में मम्मी पापा बोलती है और सबके तरफ ध्यान देकर सुनती है। ऐसी कृपा करना मेरे बच्चों में। ओम नमो नारायण। मैं सुभाष गिरधर एडवोकेट मुक्तसर तो आया जी पंजाब। मैं 22/2/2009 ਨੂੰ गुरु जी तो बीज मंत्र लिया सी। मेरे बेटे दी
जिसने कि बीटेक की हुई सी 6 महीने तक 2.5 लाख की सर्विस वास्ते अपॉइंटमेंट नहीं होंदी सी, पर जदों असीं 6 महीने दोने मियां बीबी ने पाठ किया तो मेरे बेटे की सिलेक्शन 8.5 लाख सालाना दे विच हुई। मेरा दूजा अनुभव यह है कि मेरे जाप करने नाल मेरे जोड़ां दा दर्द अगे नालों बहुत ज्यादा घट गया है ते अज मैं बस ते आया, अगे कार ते आना भी मुश्किल सी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मेरा अनुभव मेरे पति नाल है। मैं कमलजीत कौर जलंधर से बोल रही हूँ। मेरा अनुभव मेरे पति का है। असं 2005 बीज मंत्र ले गुरुदेव जी कोलों और मेरे 2006 मेरे पति नू कोई चीज ने दस लिया और वो बहुत बीमार हो गए और असी सैक्रेड हार्ट च जाके उन्होंने दाखिल कराया और डॉक्टरों की कुछ समझ नहीं सी आ रहा गुरुदेव। और 8 बजे सानू डॉक्टर ने जवाब दे दिता सी कि ये बचनगे नहीं और मैं लगातार नमो नारायण का जाप करती रही और दूजे दिन जाके मेरे पति नू होश आई। ये सब गुरु मंत्र दा और गुरुदेव की कृपा का फल है। नमो नारायण जी, नमो नारायण। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। तेरे बाजो ओ दिल दिया मेहर मवे। नमो नारायण। सतगुरुदेव जी और गुरु मां के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमन। मेरा नाम मोनिका चौधरी है। मैं श्री गंगानगर से आई हूँ। मेरा अनुभव मेरी स्टडी को लेकर है। मैं 1 साल तक मैंने पीएमटी की तैयारी की थी और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे पापा ने बीएससी में मेरा एडमिशन करवा दिया। मुझे यूं लगा कि जैसे अब मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, पर फिर भी मैं लगातार गुरुदेव जी के पाठ को करती रही और मुझे इतना विश्वास हुआ कि जैसे मेरा हो जाएगा। मैं 2 महीने तक बीएससी की और पाठ भी करती रही। फिर अचानक ही मेरे पापा ने कहा कि बीएचएमएस में एडमिशन हो गया है मेरा, और मैं बहुत खुश हुई और गुरुदेव जी की कृपा से आज मैं बीएचएमएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। नमो नारायण। मेरा नाम जगदीश राज है। मैं पठानकोट से आया हूँ। डिफेंस में नौकरी करता हूँ। 93 से मैं मुसीबतों में इतना घिरा गया था कि मेरा इतना परेशान था कि मैं मरने के लिए भी कई जगह कोशिश की, फिर भी भगवान ने बचा लिया। मेरे को खुद को टीबी हो गया, मेरी पोस्टिंग बॉम्बे हो गया, बच्चा हुआ उसकी डेथ हो गया, मेरी वाइफ पागल हो गया। पागल होने के बाद उसको मैं पठानकोट में एक डिब्बा पूरा रेल का बंद करके कई 20-25 आदमी लेके आए, यहाँ सेक्रेटरी के पास इलाज कराते रहे। फिर भी किसी ने मेरे को बोला कि पठानकोट में कि बाबा जी गुरु महाराज जी आते हैं, उनके पास जाओ। मैं पहली दफ़ा तो नहीं जा पाया, लेकिन दूसरी दफ़ा गया। दूसरी दफ़ा फिर मैं अपना होशियारपुर में बीज मंत्र लिए। जब से मैंने मंत्र लिए तब से मेरे पेट में बहुत परेशानी थी, तकलीफ थी, वो भी ठीक हो गया। मेरे को गैस होती थी, वो भी ठीक हो गया। और मेरी वाइफ जो थी, दवाई बंद होगी, बिल्कुल ठीक हो गई। 3-4 साल तक बिल्कुल दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। जब लोगों ने उससे पूछा कि तू कैसे ठीक हो गई, इतने दवाई लेती थी तो लगातार चारपाई पे लेटी रहती थी, तो उसने बोला मैं तो बाबा जी के पाठ लिया था, इससे मैं ठीक हो गई हूँ। फिर उसके बाद दोबारा रिपीट हो गया। मैं चंडीगढ़ में 7 सेक्टर में दवाई लेता रहा 2-3 साल तक, फिर पठानकोट में लिया, लेकिन अभी वो बिल्कुल पाठ भी नहीं करती थी, ना ही आती थी। अभी उसको मजबूर होकर मैंने एक दिन हम सब परिवार वाले पाठ करना शुरू किए। अब वो ठीक हो गई है और उसका दवाई भी बंद हो गया है। और तीसरा मेरा बेटे से है, एक दिन इसको रात को 2 बजे इसके पेट में दर्द हुआ, इसका रंग नीला हो गया। नीला होने के बाद ऐसे मेरे 2 बच्चे ऐसे मरे, उनके रंग नीला हो जाता था, खत्म हो जाते थे। और इसका भी हो ना तो मैं किसी डॉक्टर के पास जा सकता था 2 बजे,
ना ही मेरे पास कोई दवाई थी, ना कोई अजवैन थी जो मैं इसको खिलाता, लेकिन मैं जैसे जल लेके इसको पिलाया, इसकी दर्द बंद हो गया, ये भी ठीक हो गया। नमो नारायण। नमो नारायण गुरुदेव जी, नमो नारायण गुरुमाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। वैसे तो जब से गुरुदेव की शरण में आए हैं बहुत अनुभव हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो अनुभव है मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। अचानक रात को एक दिन उनके चेस्ट में थोड़ी पेन शुरू हुई, घबराहट शुरू हो गई, तो हम उनको मोगा के डॉक्टर स्वतंत्र मित्तल उनके पास लेकर गए। तो उन्होंने कहा भी इन्हें आप इसी समय लुधियाना ले जाएं। हम लोग उनको लुधियाना ले गए ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल में। वहां पर उनकी एंजियोग्राफी हुई जिसमें उनके सभी नाड़ियां ब्लॉक आई। तो उसके बाद हम उनको हीरो हार्ट डीएमसी लेकर गए। तो वहां पर डॉक्टर विश्व मोहन है, उन्होंने उनकी बाईपास सर्जरी के लिए बोला। तो फिर भी हमने सोचा भी चलो एक बार अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर संजीव मित्तल है, उनके साथ भी कंसल्ट कर लें। तो उन्होंने भी इनकी एंजियोग्राफी की सीडी देखी तो बोला भी इनकी बाईपास सर्जरी ही होगी। लेकिन मुझे गुरुदेव पर पूरा विश्वास था, गुरुदेव की शरण में आकर इनकी बाईपास सर्जरी नहीं हो सकती। तो हमने सबने गुरुदेव के आके प्रार्थना रखी, हमारी प्रार्थना गुरुदेव को तक पहुंची। तो हम उनको फोर्टिस में ले गए मोहाली। वहां डॉक्टर जगमोहन वर्मा है, तो उनको दिखाया। 6-7 घंटे के उनके टेस्ट हुए और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इनको सिर्फ 3% ही थोड़ी प्रॉब्लम है और इनकी बाईपास सर्जरी नहीं होगी। ये सब गुरुदेव की शरण में ही पॉसिबल है। नमो नारायण गुरुदेव। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। कुछ क्षण में ही परम पूज्य सद्गुरुदेव जी यहाँ कृपा देने के लिए पधार रहे हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो नारायण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं हिमाचल प्रदेश गांव भुंतर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से आई हूँ। मेरा ये अनुभव है कि मेरा बेटा जो है मैरिज के बाद रोता रहता था। मैरिज के बाद रोता रहता था, वो 3 साल तक रोता रहा। हम लगातार आप ही सब कुछ करेंगे। तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद अब वो बिल्कुल ठीक है, अपना कारोबार संभाल रहा है। ओम नमो नारायण। और दूसरा अनुभव मेरा ये है कि गोविंदगढ़ जब पंजाब में अभी गुरुजी का समागम हुआ था, वहां से हम गए तो हमारे को गाड़ी नहीं मिली, तो हम पैदल उरे परे जा रहे थे। ऐसे ही उरे परे जैसे जा रहे थे तो ऐसे परेशान हो रहे थे बहुत ज्यादा। तो हमने कहा गुरुजी हमने पता नहीं कौन सी गलती कर ली जो कि हमारे को गाड़ी नहीं मिल रही है। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी खुद आए और साइकिल पे मेरा सामान खुद लेके गए। तो मेरे को पूछा कि बेटा आपने खाना खाया है? हमने कहा गुरुजी खाया हमने खाना। तो मतलब उनकी आंखों से ऐसा झलका कि जैसे माँ का वात्सल्य होता है। तो उन्होंने हमारे को स्टेशन पे छोड़ के दिया और चौक के बीच में हमें पता नहीं है कि गुरुजी कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरुदेव जी के चरणों के विच कोटि कोटि नमन। गुरु मां जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। मेरा नाम अमनदीप है तो मैं मोगा शहर का रहने वाला। गुरु जी की किरपा नाल ही मैं बीटेक मैकेनिकल विच कीती ते 2010 दे विच मैं दिव्य बीज मंत्रां दा जाप कीता ते 2009 दे विच मैं एमटेक थर्मल साइंस दे विच दाखला ले लिया। ये एमटेक थर्मल साइंस अपने पंजाब दे विच सिर्फ 2 या 3 कॉलेजां दे विच ही है, लाला लाजपत राय जां भद्दल कॉलेज ते जां गुरदासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज दे विच। जदों मैं दाखला लिया तो मैनूं ये नहीं पता सी भी कि ये इन्नी औखी आ ते किसे कोई कर सकदा है। जदों मैं दाखला लिया तो मैनूं सारे जाने कहण लग गए भी तूं ये कित्थों पंगा ले लिया, ये नहीं हो सकदी। जदों मैं लिया दाखला तो गुरु जी का निरंतर पाठ करदा रहा। ये इन्ने औखे सबजैक्ट सी कि मतलब कि सिलेबस भी अज मतलब कि बहुत काफी बुक्स दे विच तां है ही नहीं।
ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਮਟੈਕ ਥਰਮਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਾ 5-7 ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰ ਥੀਸਿਸ ਵਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਓਮ ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂਆਂ। ओम नमो नारायण जी। श्री सतगुरु देव जी के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। श्री सतगुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम नीलम रानी है, मैं जलंधर से रहने वाली हूँ। पहला अनुभव मेरी बेटी के लिए है। मेरी बेटी ने जब से जन्म लिया और तब से ये बीमार रहने लगी। इसका बहुत जगह इलाज करवाया, कई पंडितों के पास भी गए लेकिन मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। जब बड़ी होती गई तब भी ये बीमार रहने लगी। और हर साल 6 महीने बाद ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਪ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 2-2 3-3 ਬੋਤਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ। मेरी बेटी ने बीज मंत्र लिया, इसने पाठ शुरू कर दिता और मेरी बेटी पाठ करन दे नाल बिल्कुल ठीक रहन लगी। फिर इसका 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट होया सी कि सिविल हॉस्पिटल गोपाल जी सेवादार जो है वो उनको लेकर गए और इनके स्टिचिंग वगैरह करवाई। लड़कियों ने भी कॉलेज दियां ने बहुत मदद की। जब मैं अपने हस्बैंड के पास पहुंची लवली में, जब मैंने CR पुलिस वालों की गड्डी देखी मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा अब मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया। जब हम जहां वहां पहुंचे तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक सी, स्टिचिंग लग चुके थे। मेरी बेटी पाठ करन दे नाल बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी दे पाठ करन दे नाल सारे दुख दूर हो गए। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है। दूसरा अनुभव मेरी बेटी के लिए है, पढ़ाई विच बहुत ज्यादा कमजोर सी, इतनी ज्यादा कमजोर सी कि जदों ते इन्हें पाठ करना शुरू किया और अच्छे नंबर भी लाए, असी इहनूं बड़ा पढ़ने नूं जोर लगाया लेकिन इन्हें पढ़ाई नहीं की। बोलती मम्मी मैं पढ़ाई नहीं करनी, मैं नौकरी करनी। सतगुरु देव जी की कृपा नाल इहनूं नौकरी भी अच्छी मिली और नौकरी जाती भी है। और दूसरा अनुभव मेरे लिए है, मैं भी बहुत ज्यादा बीमार सी। मेरे पौड़ियां तो डिगण नाल गोडे की हड्डी टुट गई सी, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल गई तो मैनू डॉक्टर ने कहा कि आपका प्लास्टर करना पड़ेगा। मैंने बोला मैंने डॉक्टर साहब प्लास्टर नहीं करवाना। तो मेरी को बेटी को बोलने लगे नहीं इसको प्लास्टर करना पड़ेगा, रेस्ट नहीं करती है ये। मैंने बोला मैंने प्लास्टर नहीं करवाना है। मैं 1 महीना पूरा दवाई खाती रही, कितनी बड़ी दवाई खाई मैंने। फिर मेरे मन में आया मैंने अब दवाई छोड़ देनी है, ना ही मैंने हॉस्पिटल जाना है। मैंने सतगुरु देव जी का पाठ किया और मेरा गोडा बिल्कुल ठीक है, दोनों ही गोडे ठीक है, मेरी बाह भी ठीक है। नहीं तो मैं बैठती सी मेरे से उठा नहीं जाता सी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तीसरा अनुभव मेरे पति देव के लिए है, जो वो स्मोकिंग करते बीड़ी सिगरेट पींदे सी, उन्होंने बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि सानू हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल हो गया। सांस उन्होंने बहुत ज्यादा फुल गई सी, सांस भी नहीं ले सकते सी। SGL हॉस्पिटल लेके गए, वहां उन्होंने 23-24 हजार रुपया मांगा। बोला 23-24 हजार रुपया दो, हम इसका इलाज करेंगे। स्कैनिंग कराया, एक्सरा कराया, SG कराई, एक पासा उन्होंने बिल्कुल खराब हो चुका सी। फिर असी घर आ गए, घर आके सतगुरु देव जी का पाठ किया। सतगुरु देव जी की कृपा से दूसरे दिन उसी दिन शाम को बोलने लगे मेरे को खाना दो, मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है, अब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सुबह ड्यूटी जाऊंगा। बस वो सुबह ड्यूटी चले गए। अब उस दिन से लेकर अब तक वो ड्यूटी जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। फिर उनकी आंख का ऑपरेशन, उस आंख में चिट्टा पड़ गया था। जब आंख का ऑपरेशन करवाना था तो उनका 4था नंबर आया था। तो बेटी मेरी सुबह 8 बजे लेके चल गई। बोला मम्मी मैं आपको बाद में लेके जाऊंगी, मैं पापा डैडी को ले जाती हूँ। मैंने बोला ठीक है आप ले जाओ। जब मैंने इसको फोन किया बेटी को, फिर मेरे को आके ले जा,
बोलती मम्मी आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो डैडी को घर लेके आ रही हूँ, डैडी का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। नमो नारायण जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले गुरु जी और गुरु मां के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम राजकुमार सिंह है, मैं जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूं। मेरा अपना अनुभव यह है कि 1 साल से मैं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवा रहा था। अचानक कभी रिसेंट 2 महीना करीब हो रहा है, मेरा चेस्ट में बर्निंग स्टार्ट किया। बर्निंग स्टार्ट होने के बाद मेरे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगा, सांस लेने में बहुत दिक्कत होता था। तो मैं जमशेदपुर में टाटा मेन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। टाटा मेन हॉस्पिटल हमको रेफर कर दिया कि आपका हार्ट ब्लॉकेज है। उसने हमको ब्रह्मानंद हृदयालय हॉस्पिटल तमुलिया जमशेदपुर में रेफर किया। वहां डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने के बाद में बताया कि आपका हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है, आप दवाई जो कंटिन्यू खा रहे थे हाई प्रेशर का वो मेडिसिन आप खाते रहो। इस बीच में सडनली क्या हुआ कि मेरा मेंटल अपसेट हो गया। न मैं कुछ सोच सकता था, न कुछ समझ सकता था, न कुछ बोल सकता था, न क्लियर सुनाई देता था, न आंख से धुंधलापन दिखाई देता था। पिछले महीना में गुरुदेव जी का प्रोग्राम मथुरा वृंदावन में जब हुआ था तो मेरे घर वालों ने इस पोजीशन में लाया था कि एक डेड बॉडी के जैसा मैं आया था। मुझे कुछ मालूम नहीं, कैसे ट्रेन में चढ़ा, कैसे समागम में गया, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन यहां से वृंदावन से लौट के जाने के बाद हमने गुरु जी से विशेष कृपा ली थी। उस वक्त हमने उसका पाठ प्रतिदिन करना शुरू किया। आज ये परिस्थिति है कि गुरुदेव जी की कृपा से हमको ये नया जीवन मिला है। आज आपके सामने जो खड़ा होकर हम कुछ बोल पा रहे हैं, मैं आज ये महसूस करता हूं कि आज जो भी हूं गुरुदेव की कृपा से आपके सामने खड़ा होकर के कुछ बोल पा रहा हूं। नहीं तो मैंने दिल में ये महसूस कर लिया था कि या तो हमको सुसाइड करना पड़ेगा या कहीं ट्रेन में कटना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा और हम बच नहीं सकता है। जिसको मेरे घर वालों ने नहीं समझा, मेरा दोस्त नहीं समझा, लेकिन गुरुदेव जी ने मेरा तकलीफ को मैं समझा और मुझे उस पोजीशन में लाया। मैंने गुरुदेव जी से मन ही मन प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव, ये जो आज समागम हो रहा है इसमें हमको किसी तरह बुलाइए। मैं समागम में भी आया, समागम देख भी रहा, सुन भी रहा और आपके सामने अपना अनुभव भी सुना रहा हूं। यही बोलते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। ओम नमो नारायण। गुरु जी नमो नारायण, गुरु माँ जी नमो नारायण। मैं गुरदासपुर रीटा कुमारी गुरदासपुर धारीवाल धाम से हूँ। मेरा अनुभव मेरी बेटी के लिए है। मेरी बेटी की बाजू की हड्डी टूट गई थी, खेलते वक्त बाजू की हड्डी टूट गई थी। तो हम गुरदासपुर राजकुमार डॉक्टर हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, वहाँ लेकर गए तो उन्होंने 1.5 महीने का प्लास्टर लगवाया। 1.5 महीने के बाद फिर दोबारा हम लेकर गए तो उन्होंने बोला कि इसके प्लेट डालनी पड़ेगी बाजू में। तो मैंने बोला कि हमारी घर के हालात अच्छे नहीं हैं तो आप ऐसे ही प्लास्टर लगवा दो। उन्होंने प्लास्टर लगवा दिया और साथ ही शिमला में समागम था। हम तीसरे चौथे दिन शिमला में समागम में जाने के लिए तैयार हुए तो हमारे घर वाले सभी कहने लगे कि बेटी को प्लास्टर लगाया, जे हिल जाएगा, आप क्यों ऐसे कर रही हो। तो मैंने किसी की नहीं मानी, मैं वहां अपनी बेटी को लेकर चली गई। तो जब हम समागम में पहुंचे तो गुरुजी की आवाज हमारे कानों में पड़ी कि जो जहां भी है वहां पे नाचे, सभी के कष्ट दूर होंगे। मैंने बेटी को कहा कि आप भी नाचो और मैं भी नाचूंगी। मेरी बेटी उस वक्त वो भी नाचने लगी और मैं भी। बाद में हम घर आकर 1.5 महीने बाद प्लास्टर खुलवाया
और मेरी बेटी की बाजू की हड्डी बिल्कुल ठीक थी। दूसरा अनुभव मेरे बेटे के लिए है। मेरा बेटा IBM कंपनी गुड़गांव में जॉब करता है और आज वो मैनेजर बना है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। नमो नारायण। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं रिंकी जलंधर से। मैंने 2004 जलंधर में ही गुरुदेव जी से विशेष दिव्य बीज मंत्र की कृपा प्राप्त की थी। तो उसके बाद मेरे पापा की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। 2005 में सितंबर में मेरी शादी हुई। तो उसके बाद 3 महीने बाद ही दिसंबर में मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। तो उसके बाद मैं पटेल हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो डॉक्टर ने मेरी स्कैन की तो कहा कि इसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है 22 mm का। तो उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने मेरी दिन बीतते गए तो मेरी तबीयत और खराब होती गई। जैसे मार्च में, अप्रैल में, मई में ऐसे मेरी तबीयत खराब होती गई। तो DMC में, बत्रा हॉस्पिटल में, ऐसे अलग अलग जगह में मैंने हॉस्पिटल में गई तो स्कैन करवाया। तो मेरी गॉल ब्लैडर में जो स्टोन था वो टूट के धीरे धीरे कभी 15 mm का हो जाता, कभी 9 mm के, कितने छोटे छोटे पीसेज हो जाते। तो फिर मेरे इन-लॉज ना दिव्य बीज मंत्र के पाठ पे विश्वास नहीं करते थे। तो मैं उन्हें उनसे डर के मारे ना मैंने कभी पाठ नहीं किया। तो उसके बाद मैंने उनसे चोरी छिपे मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ जो गुरुदेव जी ने जलंधर में दिया था, तो मैंने चोरी छिपे बिना जोत जलाए, बिना कुछ किए चोरी चोरी पाठ करती थी। 15 दिन के पाठ के बाद मैंने जून में 2006 में स्कैन करवाई तो मेरे गॉल ब्लैडर में से स्टोन गायब था। कि मेरे इन-लॉज अभी तक यही कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, ये तो ऐसे ही था। पर मेरी तबीयत ऐसी, एसिड वगैरह बनता था, वॉमिटिंग्स आती थी, मुझे नहीं पता था मुझे क्या होता था। शादी के 4.5 साल तक मेरी ऐसी तबीयत रही कि ऐसी 1-2 महीने के बाद मैं हॉस्पिटल में जाती थी, 3-4 दिन हॉस्पिटल में रह के आती थी, फिर घर में आ जाती थी कि मेरी तबीयत का कुछ नहीं पता चलता था। डॉक्टर कहते थे कि इसको पता नहीं क्या हो गया, कि इसकी सारी मेरी इंडोस्कोपी हुई, स्कैन हुई, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। तो फिर मैंने 2010 में मार्च में 27 मार्च में गुरुदेव जी विशेष कृपा ली। तो मैंने कोई विशेष कृपा को कोई पाठ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। अभी 2010 में 27 मार्च को शुक्रवार वाले दिन मैंने पाठ लिया। तो 2010 को इतवार वाले दिन ही मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज हुआ कि उसके बाद मुझे कोई वॉमिटिंग्स की प्रॉब्लम नहीं। अब तो मैं बिल्कुल ही भूल गई हूँ। पहले मैं सोचती थी कि मैं कभी ठीक होंगी कि नहीं। अब मुझे जब सभी पूछते हैं कि तू ठीक है, तभी मुझे याद आता कि कभी मैं बीमार भी थी। उसके बाद मैंने अब मेरे शादी को 7 साल हो गए हैं, मेरे को बेबी नहीं है। तो फिर मैं सोचती थी कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तभी मैं अपने सारे टेस्ट करवाऊंगी। जब मैं टेस्ट मेरा दिल नहीं करता था टेस्ट करवाने के लिए। तो मैंने मोहड़ी में जो 2012 में मोहड़ी में जुलाई में जब गुरु पूर्णिमा पर मैंने वहां पे बर्तन की सेवा की। तो मैंने बर्तन की जब सेवा की तो मैंने बस मन में यही कहा था कि गुरुदेव अगर कोई ब्लॉकेज है अंदर ट्यूब्स में कुछ भी है तो मेरी सारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो जाए, सारी जो भी है ना टेस्ट सारे नॉर्मल आए। तो मैंने नवंबर में 2012 में मैं सारे टेस्ट करवाए। तो मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए। उसके बाद वैसे अनुभव तो बहुत होते रहते हैं। 2010 में सितंबर में मेरे भाई की शादी थी 13 सितंबर को। तो उससे पहले उसको डेंगू हो गया। तो उसकी शादी सोमवार वाले दिन थी। तो उससे पहले संडे को वो हॉस्पिटल एडमिट हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ के गुरु गीता जी का पाठ किया रात को, क्योंकि गुरुदेव ने बोला था कि 11 से 4 बजे के बीच में नहीं करना, कि 11 से 11 बजे तक रात को करना। तो मैंने सोचती थी कि सारा घर का काम निपटा के उसका हाथ पकड़ के पाठ करती थी। उसकी गुरु गीता के बीच में मैंने मेडिसिन रख देती थी और वो मेडिसिन उसको देती थी। तो उसकी शादी अभी 1 दिन पड़ा था, उसके सेल्स इतने डाउन थे, सभी सेल्स उसके सही हो गए। और शादी वाले दिन हमको इतना डर लग रहा था कि घर में इतना काम का जाए, वो शादी वाले दिन हम क्या करेंगे। तो उसकी शादी भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। उसके बाद हम भूल ही गए कि उसको कभी ये प्रॉब्लम थी भी सेल डाउन की। नमो नारायण। नारायण जी, मेरा अनुभव, मैं होशियारपुर जिले की रहने वाली हूँ। मेरा अनुभव मेरे बेटे को लेकर है। मेरा बेटा 4 साल का था जब इससे बहुत बुखार होने लगा। तब हमने कई जगह टेस्ट करवाए तो पता चला कि इसे ब्लड कैंसर है। तो हमने मोहाली में पहली बार बीज मंत्र प्राप्त किए। बीज मंत्र का पाठ मैं लगातार करती रही और अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। ओम नमो नारायण। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ।
मैं अशोक कुमार शाहपुर तो आया सब प्रथम परम श्रद्धेय सतगुरुदेव शक्ति स्वरूप गुरु माँ गुरु परिवार को शत नमन करता हूँ। आई हुई सात संगत को शत नमन करता हूँ। मैं एक हर वक्त शराब मीट इस्तेमाल करने वाला इंसान था। घर वाले परेशान थे। मतलब 2009 में बीज मंत्र लेने के बाद एक तो मेरा ये अनुभव है कि उससे मेरी छुटकारा गुरुदेव की कृपा से हो गया। दूसरे नंबर पे जब मैं बाहर दुबई में था तो मेरी लात में ऐसे दर्द हो गई, रात को सोने के बाद मैं ठीक नहीं हो सका। यानी 10 फुट भी बाथरूम जाने के लिए मुझे मुश्किल होती थी। उसके लिए मेरा काफी डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करने के लिए बोला, परंतु कुछ डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आप ऑपरेशन मत ना करवाएं क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद फिर मैं लोगों के अनुभव सुनता था और देखता था कि लोग ऐसे ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। मैं दिव्य मंत्रों का पाठ किया और दिल्ली से मैंने विशेष कृपा ली। उसके बाद मैं गुरुजी की कृपा ऐसे है कि मैं चल फिर सकता हूँ, अपना काम भी उठा सकता हूँ। और दूसरा, जब सुबह सुबह मैं बोलता था, जब कोई सत श्री अकाल बोलता है या नमस्ते बोलता था तो मैं जवाब जरूर देता था उनका, परंतु मेरे गले से आवाज नहीं निकलती थी। और कई बार फिर मैं जो जान पहचान वाला था उससे मैं माफी मांग के बोलता था कि भाई साहब गुस्सा मत करना, क्योंकि मैं आपका जवाब देता हूँ मतलब मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती है। आज गुरुजी की कृपा से मेरे मुंह से आवाज भी आ रही है, आप सबके सामने बोल भी रहा हूँ। नमो नारायण। गुरुजी जैसे मेरे पे कृपा बनाए सब पे कृपा बनाए रखना। जय गुरुदेव, जय गुरु गुरुपाल को शेष नमन करता हूँ। नमो नारायण। गुरु माँ गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम इंदु है और मैं पठानकोट से आई हूँ। मुझे लीवर की प्रॉब्लम थी। अगर मैं कुछ खाती थी तो डाइजेस्ट नहीं होता था, वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। दवाई खाने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने अगस्त 2010 में बीज मंत्रों का पाठ लिया। बीज मंत्रों का पाठ करने से मेरी अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। मुझे ये दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं। नमो नारायण। नमो नारायण। गुरु माँ जी गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं कृष्णदत्त शर्मा हिमाचल प्रदेश चिंतपूर्णी से हूँ। मेरा अनुभव मेरी लड़की के बारे में है। वो पढ़ी लिखी थी, उसकी शादी के लिए हमें समस्या आ रही थी, तो हमने 2009 में पालमपुर में बीज मंत्र की कृपा ग्रहण की थी। फिर अब सारे परिवार ने वो मंत्र जाप करना शुरू किया। थोड़े समय में ही हमें बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। आज लड़की सर्विस भी कर रही है, उसके एक लड़का है और सुखी है। गुरुजी की बड़ी कृपा हुई। दूसरा अनुभव मेरा अपने लड़के के लिए है। वो पीएचडी कर रहा था तो उसके कुछ रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने मोड़ी में गुरुजी से कृपा विशेष कृपा ग्रहण की, तो उसका जल्दी ही वो रिजल्ट भी क्लियर हो गया और साथ साथ उसको विदेश में गुरुजी ने पीडीएफ करने के लिए भी विदेश में भेज दिया। आज वो विदेश में पीडीएफ कर रहा है। गुरुजी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम नमो नारायण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सुमन वीपीओ सोल डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से आई हूँ। मेरा अनुभव मैनू अपने तो लेके है कि 26 जून 2011 च मैं कुल्लू के समागम ते गई सी। जो मैं उतों वापिस आ रही सी, पता नहीं मेरे तो की भुल हो गई कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। आंदिया होया एक्सीडेंट इन्ना जबरदस्त सी कि 1.5 घंटा मैं रोड ते पई रही। फिर 108 नंबर वैन ने मैनू उठा के अमृतसर लैके गए अमनदीप हॉस्पिटल। उत्थे जाके डॉक्टर ने जवाब दे दिता, कहंदे कि इन्हां लुधियाना डीएमसी दे विच रैफर कर दिता, कहंदे उत्थे लैके जाओ। मेरे मम्मा बाद विच उत्थे आए ते मैनू लैके लुधियाने गए। डॉक्टर रजनीश गर्ग दे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा। मेरी सज्जी लत्त जो कि 4 जगह तो फ्रैक्चर हो गई।
डॉक्टर ने कहा कि चलना बहुत मुश्किल है, कि उठ भी नहीं सकते, मेरे बैक ते सट लगी, मेरी बांह टुट गई और मेरा फेस इन्नी बुरी तरह खराब हो गया सी कि अगर बच्चे भी देखते सी तो डर जाते सी। ते मेरा डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता दे ट्रीटमेंट चलन लगा। वो कहते कि प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, पर मेरी घर की हालत कुछ ऐसी नहीं कि मैं इन्ना खर्चा दे सकती। फिर मैं गुरु जी ने, मेरे माम ने, मम्मा ने और मैं दोनों ने गुरु जी के अगे अरदास करनी शुरू कर दी कि गुरु जी इन्ना खर्चा असी नहीं कर सकते और तुसी सानू बस इतों छुट्टी दवा के घर वापस ले जाओ। उस तो बाद मैं, मेरे मम्मा ने पाठ करना और मैं बेड ते बैठी हुई हॉस्पिटल च बोल भी नहीं सी सकती कि तुसी मेरा फेस देख सकते हो कि अज भी मैं नहीं, मतलब ठीक मेरा फेस है पर मैं बोल नहीं सकती सी, मेरे दंद सारे टूट गए सी अगों। ते मैं, मम्मा ने गुरु गीता दा पाठ करना शुरू किया ते मैं लागे बैठ के सुनती रही। उस तो बाद जदों मैं बोलना शुरू किया ते बेड ते बैठी हुई मैं अपना पाठ करना शुरू किया और गुरु जी दे अगे ही अरदास की कि गुरु जी इन्ना खर्चा असी नहीं कर सकते, तुसी सानू प्लीज छुट्टी दवा के वापस ले जाओ। मैं उस तो बाद जदों 1 महीने बाद घर गई तो मैं 5 महीने बैठते रही और मैं गुरु जी का पाठ करती रही, बस यही कहती रही कि मैं इन्ना खर्चा नहीं दे सकती कि मेरी फेस की प्लास्टिक सर्जरी होए, क्योंकि अजे मैं अनमैरिड सी और मेरी उम्र 36 साल है। पर डॉक्टर ने कहा कि इन्नी उम्र होने के बावजूद असी नहीं कह सकते कि तुसी चल पाओगे कि नहीं, अगर चलोगे तो हो सकता है कि तुहाडी लत च कुछ फर्क रह जाए। पर अज मैं एक पाठ करन दे नाल ही, अज प्रभु की कृपा के नाल ही अज मैं बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हाँ और घर दे विच सारा काम भी कर रही हाँ, अपनी मम्मा की हेल्प भी करा रही हाँ। जद कि मैंने सारे रिश्तेदार कहते सीगे कि तुहाडी बेटी ने चलना नहीं है, ये अपाहिज हो गई है, इहदा फेस खराब हो गया, बस ये हुण तुहाडे जोगी रह गई घर दे विच। मैं एक प्राइवेट जॉब भी करती सीगी, अज मैं घर बैठी हुई हाँ, पर मैं प्रभु का इन्ना शुक्रगुजार है कि अज मैं घर का काम कर रही हूँ, अपना खाना बना रही हूँ और मैं घर विच सारे जियां नूं मैं देख रही हूँ। जिस तरह मेरे ते कृपा की है, प्रभु सब ते ही कृपा करना। नमो नारायण। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तेरे बाजों दिल दिया मेहर मवे, तेरे बाजों तेरे बाजों तेरे बाजों बाजों जी तेरे बाजों ओ तेरे बाजों दिल दिया मेहर मवे, तेरे बाजों दिल दिया मेहर मवे। दिल क्यों ना नेड़े जचदा है मेरे रूरू विच, मेरी नस नस विच, मेरे रूरू विच, मेरी नस नस विच तेरी याद दा तुम्बा वजदा है। आजा अखियां उड़ीकदियां दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीकदियां दिल वाजा मारदा। आओ गुरु जी तेनू, आओ गुरु मां जी तेनू वास्ताई प्यार दा। आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां, आजा तेनू वे गुरा जी तेनू अखियां उड़ीकदियां, वे गुरा जी तेनू अखियां उड़ीकदियां, अखियां उड़ीकदियां दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीकदियां दिल वाजा मारदा।